एक आत्मज्ञानी गुरु है तो वो आत्मज्ञान की निशानियाँ क्या है? कई बार ऐसी सिचुएशन हुई कि लोग बोलते हैं कि आई वांट टू कमिट सुसाइड। हाँ ठीक है, करना है, मैं बताऊंगा। उनकी प्रेजेंस में आंखें खुली रखते हुए भी आपको लगता है कि आप एक ध्यान की अवस्था में हो, आप अपने आप से जुड़े हुए हो। धीरज रखो, धीरज रखो। एंड आई वाज लाइक इस सेट कि हमेशा ये सबको धीरज रखने की बात कह रहे हैं, अब ये मेरे साथ हो रहा है, वो कितनी धीरज रखेंगे? हम कहते हैं कि सारे ग्रह जो है सबका अपना सम्मान हो सकता है, हाँ सबका अपना एक रोल है, लेकिन सबसे ऊपर गुरु है। और ऐसी कोई बाधा जीवन में नहीं हो सकती जिसका समाधान गुरु भक्ति से ना हो। तो वे आपको ब्रह्म शक्ति का अनुभव कहाँ हुआ गुरुदेव के साथ रहते हुए? जो घटना तुम्हारे जीवन में हो रही है ना, वो एक बहुत बड़ी घटना का एक भाग है। तो इसके पर मेरा मंथन शुरू हो गया। यू नो, आई ऑलवेज लाइक टू आई कॉल इट अ डीकोडिंग द मास्टर। दिन के समय समुंदर सा इश्क, डूबने का डर, डूबना ही इश्क। आज हमारे साथ हैं दर्शक हाथी जी, जो आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत सीनियर टीचर हैं, एंड वी वुड लाइक टू नो अ लिटिल बिट अबाउट हिज जर्नी ऑन द पाथ विद गुरुदेव। दर्शक हाथी जी, वेलकम। आपको काफ़ी समय से जानते हैं, गुरुदेव के काफ़ी क्लोज देखा है। हमें बताइए, आप पाथ पे आए कैसे? What brought you on the path? Well, I had no idea to be a spiritual. In fact, I would say I used to be high on spirit. So, coming from a metropolitan background, I grew up in Bombay. I was so busy with my professional life, and but it so happened that some misery, I lost one of my very dear friend, and that started thinking me like, what is life all about? And then I got inclined to many different kind of programs, and somehow I got to know about art of living. When I did my art of living the first time, and my teacher asked me, how was your Sudarshan Kriya? It was really out of the world experience. I said, it's amazing, but for me it's like a bottle of champagne. Because that was your closest Like, reference. that was my closest. I said, like, it's so high, and you just breathe and you get so high. And it's like my mind is absolutely clear. All that worries and tensions and trauma, everything was gone. Well, I started practicing it, and then my teacher told me about the advanced program. He said, why don't we go to the ashram, and there you get to meet, a guru. Yeah. And I had no idea about like who the guru is, and then how does it look like, and what is ashram life, nothing. So absolutely with no prior conception, I just went to the ashram. I did my first... What year was this? Well, it was back in 90s, Hmm. when we still used to have button on our mobiles. Meditation was esoteric in those days. So nobody used to speak about meditation and breathing and all of that. So advanced course में पहली बार I saw Gurudev. I wouldn't say it was a love at first sight. It was like very awe-inspiring figure for me, and it's like, wow, this is what Guru is all about. But I had no personal experience with him. End of the program, in those days he used to call everybody in his kutir, and he used to meet everybody one by one, and like, so kya kar rahe ho, and where are you from, and all that. And I saw a couple of people like giving him a good hug, and I said, wow, you can hug the Guru also. So I bowed down to him, and then I said, can I hug you? He said, and he had this wink in his eyes, like, very mischievous, yes. And I gave him a hug. I don't know what happened. I just went into trance. My teacher was sitting next to me, and he just held my hand. He said, okay, come and sit. Probably it was like 25-30 minutes. I was gone completely. Really? And I never had that experience in my life so far. And then after some time,
गुरुजी टैप ऑन माई हेड, ऐसे किसका ध्यान कर रहे हो, मैं तो यही हूँ, चलो सत्संग. And I said, well, this was meditation. I was like, I was trying to connect with somebody, but I was completely disconnected. So that was my first experience with Gurudev. And then journey went on. Immediately, during the advanced program, I also did the Sahaj Samadhi meditation with Bhanu Didi, and that was again a big experience for me. It was like, to see somebody who is so spontaneous, so natural, and so loving. I said, well, Art of Living में तो इतने प्यारे लोग हैं, मैं कब ऐसे बनूंगा? And I kept on doing my sadhana regularly, meditation, and it's like in a couple of months, I could just simply overcome my, habit of, alcohol, and I said, well, I've got a lot of confidence. I saw a big shift in my temperament. I mean, I used to be a very aggressive kind of a person, and coming from that martial art background, so Acha. something happens, I would just pick on fights on the street also, like I would beat somebody. And you can be a little more calm, and you can take life more easily. So couple of years, like I think maybe 1 or 2 more years, and then again Gurudev came to Bombay, and then I went to see him. In those days, there used to be a big darshan line, and he would meet everybody and hug everyone. And so I went on the stage and I gave him a hug again. So what is happening in your life? I think nothing much. Like I'm just wondering that what should I do? I said, come for the advanced program once again. Well, if you say so. So I went again for the advanced program, and I did my second program, and that time I came to know about teachers training. Oh. So he said, I asked him that, can I be a teacher? He said, yeah, you should come for the teachers training. So I went to the Rishikesh, I did my first teachers training, and in that teachers training I had a lot of, interaction with him, and he gave me a lot of clarity about, what you can do in your life and all of that, all the questions which I had, like the burning question, should I get married? And Please share some of those burning questions. well, that was a time, as usual, there was always a pressure from the parents, like, to get married and settle down in your life, and I was into business, but I was not so keen to do the business. I was not happy because in very early age I had like everything in my life, whatever I wanted to. So I said, now what next? Is this the life all about? So he said, don't worry, get married when you want to, and you have a lot of things to do on this path. So I had no idea what does it mean, what I'm heading for. And so इस तरह से वो एक जर्नी की शुरुआत हुई, बहुत क्लैरिटी मिली, और उसके बाद सबसे बड़ी बात तो ये हो कि गुरुदेव का नंबर मिल गया मुझे उसी टाइम उस टाइम में. And whenever I used to call, like in between sometime, I would go into trance. While on the conversation. On the conversation. Like I used to feel something inside this. And कई बार तो ये हुआ कि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ और कुछ बात हो गई है. I had to park my car on the side and I would go into meditation. Much later I realized that, जैसे वो सुदर्शन क्रिया में एक गुरुदेव की आवाज़ से जो शक्तिपात होता है, वैसे ही जब भी आप उनकी आवाज़ सुनते हो, it uplifts your energy. Correct. So उन दिनों में तो वाईफाई नहीं था, बट मेरे लिए वो एक वाईफाई था. जब भी मुझे डिस्कनेक्ट होना है, I would just call and I will get connected to myself. How was Gurudev in those days? Well, बहुत मुझे इंटीमेट टाइम, क्योंकि उस वक्त उतने लोग कुछ ही लोग थे उस नहीं थे, और बहुत समय मिला उनके साथ. ट्रैवल भी बहुत करने मिल रहा था मुझे, अभी भी मिल रहा है, लेकिन उस समय भी काफ़ी समय था उनके साथ, और बहुत कुछ जानने की जिज्ञासा थी. शुरू में जब ये होता है कि लाइक यू कम एज अ सीकर,
and you want to know about a lot of things. So I would ask all those questions. धीरे धीरे ये लगा कि वो सवाल भी खत्म होते गए. बोले क्या पूछना है. और फिर समय रहते हुए ये पता चला कि शुरू में तो ज्ञान की ज़रूरत होती है, आप ज्ञान के लिए आप, पर वो फिर क्या होता है कि जब आप एक भक्त हो जाते हो, एक डिवोटी हो जाते हो, तो फिर वो ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती. मतलब मैं खुश हूँ, आपकी प्रेजेंस में मैं खुश हूँ, आपके साथ रहते हुए खुश हूँ. तो आई डोंट नीड एनीथिंग इन माय लाइफ. कभी उनकी प्रेजेंस को छोड़कर उनके फॉर्मलेस को आपने एक्सपीरियंस करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिली? मतलब कभी जब उनके साथ नहीं रहे, क्योंकि आपने उनके साथ काफ़ी वक्त बिताया, बट जब उनके साथ नहीं रहे कुछ वक्त, तो उनको आपने कैसे एक्सपीरियंस किया? तब उन मोमेंट्स में आपने उनको कैसे एक्सपीरियंस किया? कुछ इंसिडेंट या कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ जहाँ आपको लगा हाँ गुरु मेरे साथ है? हाँ, बहुत बार ऐसे अनुभव हुए, क्योंकि हम ये समझते हैं कि भाई शरीर में तो हम उनसे कनेक्ट कर लेते हैं. इन द फिजिकल फॉर्म यू ऑलवेज वांट्स टू कनेक्ट विथ हिम, बट व्हेन ही इज़ नॉट अराउंड विथ यू एंड व्हेन देयर इज़ अ मोमेंट इन योर लाइफ, लाइक एक बार ये हो रहा था, मैं बिहार में ट्रैवल कर रहा था. उस लेट इन द इवनिंग, लेट नाइट था रादर, और कुछ टीचर्स हमारे साथ थे एंड वी वर जस्ट ड्राइविंग डाउन. तो एक सिटी से दूसरी सिटी जाना था, रात का समय था. इतने में मैं क्या देखता हूँ, मेरे से करीब 500 मीटर दूर होगा करीब एक ट्रक आके रुकी और उसको ओवरटेक करके एक पुलिस की जीप आ गई. एंड सडनली, और वो वन वे ट्रैक था, रात को लाइट नहीं थी, स्ट्रीट लाइट भी नहीं, तो मैंने इमीडिएटली स्टॉप कर दी कार. क्या देखता हूँ कि वो ट्रक से कुछ लोग भागते हुए आसपास जो फील्ड था उसमें चले गए, खेत के अंदर, और वो जीप से पुलिस निकली और फायरिंग होने लगी. और उस समय मैं देख रहा हूँ कि मेरा फ़ोन जो डैशबोर्ड पे है उसमें घंटी बज रही है, गुरुदेव का फ़ोन है. तो बोले कहाँ हो? मैंने कहा बिहार में हूँ. बोले क्या हो रहा है? तो मेरे सामने शूटिंग हो रही, फायरिंग चल रही. बोले भाई इतनी रात को क्यों ट्रैवल करो? मैंने बोला कहीं सत्संग से हम आ रहे थे और ये सामने एक हादसा हो रहा है. तो बोला अच्छा कितनी देर और है? मैंने बोला बस आधा एक घंटा और लगेगा हमें. तो ठीक है भाई, इतनी रात को ट्रैवल नहीं करना. हाँ, जय गुरुदेव. और मैं क्या देखता हूँ कि जैसे उन्होंने फ़ोन रखा, सामने से पुलिस इशारा करती है कि निकलो यहाँ से. और तुरंत मैंने अपनी गाड़ी निकाल के मैं पहुँच गया. दूसरे दिन पता चला कि वो उस वक्त वहाँ पे इलेक्शन चल रहा था, तो कुछ बूथ कैप्चरिंग किया था इन्होंने, और वहाँ पे जो हादसा हुआ उसमें 3-4 लोगों को उन्होंने मार दिया. तो इट्स लाइक एन SOS, लाइक whenever you want, you know that his energy, his grace is always there to protect you. वाओ, प्लीज़ ऐसे कुछ और किस्से शेयर करें. बहुत पहली बार जब मैं यूरोप गया था और बर्लिन में मुझे भेजा था, तो वहाँ पे कुछ कोर्सेज करवा रहा था. तो फिर वैसे ही हो गया, तो रात को कोर्स कंप्लीट करके मैं जा रहा था. तो वहाँ पे वो मेट्रो होती है, तो आपको नीचे सबवे से जाना है. तो मैं इसी तरह से अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में जा रहा था, और कुछ स्किन हेडेड यूथ थे. सो लाइक दे ट्राई टू स्टॉप मी. So I didn't pay attention to them. मैं अपने स्पीड से चलते रहा, एंड मेरा हाथ में एक वो जो बैग था, सो लाइक वो स्नैच करने की कोशिश की, लेकिन कर नहीं सके. वो आगे से आए, कुछ अपनी भाषा में बोल रहे थे स्टॉप करने के लिए, लेकिन वो कर नहीं पाए. और 5-7 मिनट का एक बात रही होगी, तो 5-7 मिनट के बाद मैं सबवे से बाहर निकल गया. नेक्स्ट डे मॉर्निंग फ़ोन आता है, भी देखो कोई वॉलंटियर्स वगैरह हो तो उसके साथ रात को जाया करो, वहाँ पे नया शहर है. तो मैं समझ गया कि वो क्या कहना चाह रहे थे. तो क्या आपको लगता है जब आप ये एक्सपीरियंस करते हो, हाउ डू यू कॉम्प्रहेंड दिस, हाउ डू यू
अंडरस्टैंड दिस, आप कैसे अपने आप को इसको कैसे प्रोसेस करते हैं? गुरु क्या है? या इट्स अ गुड क्वेश्चन। मेरे लिए वो एक एनर्जी है, एक यूनिवर्सल एनर्जी, क्योंकि जो हम स्क्रिप्चर के द्वारा या हमारे शास्त्र के द्वारा जो समझते हैं कि जब एक व्यक्ति आत्मज्ञानी होता है, एनलाइटन होता है, so that person is not confined by the time and space. I mean, he's just there in the physical form, but manifesting that unmanifested consciousness, which is universal, which is everywhere. And he's just there to inspire you, to give you an example that you are also the same energy. So ये कहते हैं ना कि भाई तुम्हारी चेतना, तुम्हारी आत्मा, गुरु और ईश्वर तीनों एक ही है। वो एक अलग अलग स्थिति है। तो आप जब अपने आप से जुड़ते हो तो आप उस शक्ति से भी जुड़ जाते हो, एंड दैट एनर्जी इज ऑलवेज गाइडिंग यू, प्रोटेक्टिंग यू। आज हम जीपीएस की बात करते हैं, पर मेरे लिए क्या है कि वो गुरु पोजिशनिंग सिस्टम है। मतलब कहीं पे भी जाओ आप, यू आर ऑलवेज कनेक्टेड टू दैट जीपीएस, यू नो, दैट एनर्जी, एंड यू कैन नेवर गेट लॉस्ट इन योर लाइफ। कभी आपने देखा कोई एक स्केप्टिक इंसान जिसने ऐसी एनर्जी को एक्सपीरियंस किया आपके आसपास इर्द गिर्द, और एक्सपीरियंस करके एक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि आप सीनियर टीचर रह चुके हैं काफ़ी? या बहुत बार। एक विदेश की एक यूनिवर्सिटी थी जिसके साथ हमने टाई अप किया था कुछ एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स के लिए। तो हाईली इंटेलेक्चुअल वहाँ पे प्रोफेसर थे, तो हमने टाइप तो कर लिया। फिर हमने कहा कि भाई आपको इंडिया आना है और गुरुदेव से मिलना है, तो बोला ज़रूरत नहीं है, हमारा काम ऐसे हम करेंगे। तो आई सेड नो, यू हैव टू कम एंड मीट मास्टर, आई मीन इट्स एन एक्सपीरियंस। But I said, I don't believe in all this thing, and I'm coming from a scientific background, so I have a lot of questions. So I said, never mind, just come and meet him. So वो सज्जन आए पहली बार, और वहाँ पे आए और बैठे, और जब वो गुरुदेव के सामने गए, and गुरुदेव was so easily was like said, how are you, and आपने आश्रम में ये देखा, हमारी गौशाला देखी, and it was like चिट चैट जैसे हम यहाँ पे कर रहे, इतने स्वाभाविक तरीके से उनके साथ वो बातचीत कर रहे थे, जैसे लगे नहीं उनको कि वो पहली बार आए हुए। और गुरुदेव के साथ हमेशा ये होता है, किसी को भी ये लगता नहीं कि वो पहली बार मिल रहे हैं उनको। 5 मिनट 10 मिनट हुई तो मैंने प्रोफेसर को कहा कि प्रोफेसर, वुड यू लाइक टू आस्क सम क्वेश्चंस? ही सेड मे बी लेटर। 10 मिनट 15 मिनट बैठे, फिर गुरुदेव के ठीक है, आप इनको आश्रम दिखाओ और फिर आओ मिलो, बाद में हम मिलते हैं। बाहर गए, मैंने बोला प्रोफेसर, यू हैड लॉट ऑफ क्वेश्चन टू आस्क। हु इज दिस मैन? सेड आई नेवर हैड दिस एक्सपीरियंस इन माय लाइफ, माय माइंड वाज कंप्लीटली ब्लैंक एंड आई वाज सो हैप्पी। इट वाज नॉट लाइक he did something to me, but it was like I'm just meeting myself. Wow. I said, this exactly is an experience which I wanted you to have. So I was calling you, and he said, I'm so thankful that you called me to meet this person. Yeah, and then he did the program, and then it was like completely changed that personality. और एक अनुभव मेरे साथ जो हुआ था, जो like very special for me, we went to Venezuela. तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने एक मीडिएशन के लिए गुरुदेव को वहाँ पे बुलाया था, जब घटना हो रही थी, शायद 2017-18 की बात है। और जब हम वहाँ पे गए, और वहाँ पे एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट था, एक सिलेक्टेड प्रेसिडेंट था। तो गुरुदेव पहले इनको मिले, इलेक्टेड प्रेसिडेंट को मिले, और उनसे बातचीत की कि भाई देखो, इस जो घटना है, सारी सिचुएशन है आपके कंट्री की, उसको कैसे सॉल्व करा जाए, एंड योर कंट्री इज सो प्रॉस्परस, इट्स लाइक इट हैज़ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू डेवलप, एंड अनलेस देयर इज अ पीस देयर इज नो प्रोग्रेस। सो आई सेड, या आई फुल्ली एग्री विथ यू, बट द अदर पर्सन इज नॉट रेडी टू डिस्कस विथ मी। और फिर हम उनके वहाँ गए, इट वॉज लाइक अ पैलेस, और वहाँ पे हम गए, गुरुदेव बैठे, तो एक
पहले के ज़माने में हम सुना करते थे कि राजा थे और जो वहाँ पे राजगुरु थे तो उनसे वो मार्गदर्शन लेने आते थे। तो जिस तरह से गुरुदेव को वहाँ पे वेलकम करा गया और एक तरफ उनके अपने सारे मंत्रीगण बैठे थे, एक तरफ हम बैठे थे और वो बैठे हुए थे और गुरुदेव एक के बाद एक बात ही उनको जो समझा रहे थे उनके देश की परिस्थिति को लेकर। और वो व्यक्ति ऐसा था मतलब कि जो किसी की भी बात नहीं सुनेगा। बहुत बड़ी विदेशी सत्ताओं की भी बात नहीं सुनता था, वो अमेरिका की बात नहीं सुनता था, किसी को मिलता नहीं था वहाँ पे। आधा घंटा नहीं हुआ होगा और व्यक्ति कहता है कि आई थिंक यू आर चेंजिंग माई माइंड, समथिंग इज हैपनिंग इन माई माइंड, आई सी वॉट यू आर सेइंग, आई नेवर हैड दिस पर्सपेक्टिव इन माई लाइफ। एंड आई सेड लुक इट्स जस्ट हाफ एन आवर एंड हिज फेस वाज सो रिलैक्स। अच्छा, उसके बाद जो कुछ भी बातें बोली उन्होंने 2-3-4 महीने के अंदर वो सारी बातें इम्प्लीमेंट कर दी और उस देश के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। पर जब उनके मिनिस्टर्स बाहर आए थे, अब उनसे बात कर रहे थे कि हाउ वाज इट, आई सेड कि हमने कभी प्रेसिडेंट को इतना रिलैक्स नहीं देखा। तो एक उनकी प्रेजेंस में कैसे वो व्यक्ति के परिवर्तन हो जाता है, इट वाज जस्ट अमेजिंग। तो उसका इंग्रेडिएंट क्या है आपके हिसाब से, उस प्रेजेंस का, वो जो उसका इंग्रेडिएंट क्या है, वो क्या हो रहा है उस वक्त, आप कैसे उसको ब्रेक डाउन करेंगे? हम ये कहते हैं कि भाई मन बुद्धि चित्त अहंकार होता है और उसके परे चेतना होती है। तो गुरुदेव के प्रेजेंस में आप ये सबसे परे चले जाते हो। ये जरूरी नहीं है कि आप आंख बंद करके ध्यान करो, उनकी प्रेजेंस में आंखें खुली रखते हुए भी आपको लगता है कि आप एक ध्यान की अवस्था में हो, आप अपने आप से जुड़े हुए हो। और वो चेतना के अंदर जो कहीं पे कुछ रुकावट है, कुछ उसके पहले जो एक तनाव पड़ा हुआ है, वो अपने आप हट जाता है। मतलब मैंने इतने सालों में एक व्यक्ति को देखा नहीं कि जो गुरुदेव को मिला है और कहीं रोते हुए गए। हाँ, खुशी के आंसू हो सकते हैं, पर उनके चेहरे पे हमेशा हंसी और वो एक तृप्त होके जाता है। मुझे लगता है कि वो अनुभव जो है वो इट्स ऑन अ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। You meet him and you get so much of inspirations, you get so much of upliftment, and suddenly you start having a new perspective in your life, which you would have never thought. Yeah. कोई एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपका हुआ हो जो जहाँ पर आप बिल्कुल अपने लोवेस्ट पॉइंट पे थे और गुरु आए आपके पास और आपको इसमें से निकाले, ऐसा कोई इंसिडेंट? क्योंकि आप काफ़ी टाइम स्पेंड कर चुके हैं। Recently it happened in my well, not in my family exactly, कि कुछ ऐसी क्राइसिस हो गई थी and it was there for like few months and I was just struggling and asking people and of course I asked Gurudev many times and like क्या करे। He said धीरज रखो, धीरज रखो, and I was like, he said कि हमेशा ये सबको धीरज रखने की बात कह रहे हैं, अब ये मेरे साथ हो रहा है तो कितनी धीरज रखेंगे। एक दिन उन्होंने कहा कि देखो पूरी दुनिया में सबके साथ ये होता है कि पूजा प्रार्थना करते हैं और वो बात हो जाती है, नहीं कैसे होगी, तुम प्रार्थना करो, ये होना ही है। और उस वक्त मुझे लगा कि मैंने वो इंटेंसिटी के साथ शायद प्रार्थना नहीं की थी। और जैसे उन्होंने कहा मैं करते गया और एक के बाद एक जो एक परिवर्तन मुझे उस परिस्थिति में, मतलब इट वाज कंप्लीटली लाइक आई एम इन फ्रंट ऑफ द वॉल। कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। या देयर वाज सम जुडिशियल प्रॉब्लम्स एंड लीगल इश्यूज एंड आई सेड लाइक आई एम नॉट हेडिंग एनीवेयर। नवरात्रि आई और अंदर से एक प्रेरणा हुई, चंडी होमा का मैंने एक संकल्प ले लिया और मानो कि यहाँ पे चंडी होमा शुरू हुआ है, जैसे वहाँ पे पूर्णाहुति होती है मुझे वो गुड न्यूज़ मिलते हैं। वाह, कि वो सिचुएशन हट गई। भगवान भी या गुरु भी अब एक टाइमिंग देख के
करता है अपना काम। तब मुझे समझ में आया कि वो एक एक क्षण का होना ज़रूरी है कि जहाँ पे वो बस आपको तो सिर्फ प्रतीक्षा करनी है और पूरे मन से एक प्रार्थना करनी है, और वो एक जब क्षण आती है आपकी सारी बाधाएं हट जाती हैं। इस पे थोड़ा और बताइए कि क्या हमसे क्या एक्सपेक्टेड है जब हम एक सिचुएशन से गुजरते हैं जो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल लगती है, कुछ रास्ता नहीं दिखता उसमें कैसे निकले, तो उस टाइम हम साधकों से क्या एक्सपेक्टेशन होती है? अपनी श्रद्धा को कभी हिलने ना दें, और वन पॉइंटेड अटेंशन जो है वो आपका गुरुदेव पे रहे, और आप जितनी मतलब है ना वो इंटेंसिटी, क्योंकि जब आदमी ऐसी परिस्थिति में घिरा होता है ना वो बहुत कुछ करता है। वो मैंने भी वो अनुभव किया कि भाई आप इस एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाते हो, आप उनसे पूछते हो उनसे पूछते हो, पर ये सारा वो आपको उस समस्या का समाधान नहीं दे सकते। वो कह सकते कि आपकी समस्या है और आपको और बोझ लगेगा, मतलब हाँ ये भी कह रहा है वो भी कह रहा है कि आपकी ग्रह दशा ऐसी है। हम कहते हैं कि सारे ग्रह जो है सबका अपना सम्मान हो सकता है, हाँ सबका अपना एक रोल है, लेकिन सबसे ऊपर गुरु है। और ऐसी कोई बाधा जीवन में नहीं हो सकती जिसका समाधान गुरु भक्ति से ना हो। बस आपकी श्रद्धा, आपका वन पॉइंटेड फोकस, अटेंशन एंड दैट प्रेयरफुल अटेंशन, और वो विश्वास रहे कि ये होगा ही। मतलब कई बार ये होता है कि आप वो घटना से बहुत छोटे अपने आप को महसूस करते हो और भूल जाते हो कि जब गुरु आपके पास है तो कोई ऐसी घटना नहीं हो सकती जो आपसे बड़ी हो सकती है। So have the faith. Yeah. And you have the biggest power. When you have the trust, you have the biggest power in with you. ऐसी एक क्वालिटी बताएं जहाँ जो गुरुदेव को बहुत पसंद है साधक में देखकर, उनको पसंद आती है वो क्वालिटी। प्रसन्नता। और ये शब्द नहीं है, इसके पीछे बहुत कुछ हो सकता है। जब आप अपने तनाव से मुक्त हो, जब आप तृप्त हो, दैट आई एम टेकन केयर ऑफ, और आपके मन में एक विश्वास है, और वो ये कहते हैं ना कि चाह गए चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए वही शहंशाह। तो एक मन की ऐसी स्थिति हो जाती है कि कुछ मांगने के लिए कुछ है नहीं, और जो कुछ है वो ज़रूरत से ज़्यादा समय से पहले हमें मिलते रहेगा, तब वो एक संतोष बन जाता है मन में, तब प्रसन्नता आती है। अच्छा, ना ही कोई शिकायत हो, जहाँ पे बहुत शिकायत होती है वहाँ प्रसन्नता नहीं रहती। जहाँ पे वो राग द्वेष है, कोई जेलसी है, तब प्रसन्नता नहीं रहती। तो ये सबसे जब मन आपका परे है, you are so happy, you are so contented within yourself, and then you see lot of progress in your life. आपके कोई काम में रुकावट नहीं होती, भी है तो आप प्रसन्न रहते हो। चलो थोड़े समय के लिए है, शायद मेरी स्किल को और डेवलप कर लूँ मैं। आई थिंक दिस वन वर्ड इज लाइक इट शोज द कंप्लीटनेस ऑफ योर पर्सनालिटी। कभी आपने गुरुदेव का एक फर्म साइड देखा, एक स्ट्रिक्ट साइड, जहाँ पर जैसे कभी हमारे से कुछ गलती हो जाती है और गुरुदेव एक शिफ्ट, उनके पर्सपेक्टिव में एक शिफ्ट आता है हमारे लिए, जो हमारे उद्धार के लिए होता है? वेल, ऐसे बहुत सारी घटना होती है, बट मैंने एक देखा कि इसमें एक बहुत बड़ा उनका एक जो मैनेजमेंट जिसको कह सकते हैं सूत्र है। कई बार ऐसे सिचुएशन हुई कि लोग आए और बहुत बड़ी गलती हुई है उनकी, चाहे पर्सनल लाइफ में हुई हो या प्रोजेक्ट में हुई, उस समय उस व्यक्ति को वो कभी डांटते नहीं हैं। सबसे पहले उस घटना में अच्छी बात क्या हुई वो पहले बताते हैं। चलो हाँ ये हो गया, ये गलती हो गई, ये तो अच्छी बात हुई उसके अंदर से। सो ही विल हाईलाइट दैट गुड थिंग फ्रॉम दैट सिचुएशन, एंड द रीजन बीइंग, if you pinpoint a mistake at that moment, the person would go into a guilt. तो वो कहते कि अब वो व्यक्ति आया है, उसे पता है कि मेरे से गलती हो गई, अब अगर मैं उस गलती को दिखाता हूँ तो वो गिल्ट में जाता है।
तो मेरा काम है उसको सबसे पहले उससे बाहर निकल, फिर एक दो बार मिलने के बाद अच्छा क्या हो गया, कैसे इसको सुधार सकते हैं, you know. So it's a learning how we manage that situation and how we bring out that person from that guilt, you know, from that regret or whatever is there in his mind or her mind, and then he gives a new dimension. Okay, chalo galti hogi, theek hai, let's move on. And that moment is like firm. ठीक है, इसके लिए अगर आपको पश्चाताप करना पड़े करोगे, बट डोंट फील दैट ओके दिस इज द एंड ऑफ लाइफ. कई बार ऐसी सिचुएशन हुई कि लोग बोलते हैं कि आई वांट टू कमिट सुसाइड. हाँ ठीक है, करना है, मैं बताऊंगा कैसे करना है. अभी नहीं, वो समय नहीं है, मैं बताऊंगा तुम्हें. गुरुदेव काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को, कॉम्प्लिकेटेड पर्सनालिटीज़ को बहुत स्किलफुली हैंडल करते हैं. जैसे आपने पहले भी बताया, ऐसे कोई और इंसिडेंट्स जो डेवोटीज़ के साथ हुए हों आपके आसपास, आपने इंटीमेटली किसी को देखा हो जो. राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के इशू में मुझे कई बार उनके साथ, कई सालों तक उनके साथ अलग अलग मीटिंग्स में जाने का अवसर मिला था. एंड आई सॉ हाउ he changed the mindset of the community, I would say, not just the individual. मतलब दोनों कम्युनिटी में ये बात थी कि कोई छोड़ने के लिए तैयार ना था उस बात को. You know, why should we give up? And then there was always this one-upmanship. तो उस सिचुएशन को उन्होंने इतने सालों में जिस तरह से हैंडल करके रिजॉल्व किया है, you know, meeting the people, giving them a perspective, like, you know, that okay, what will be the situation, I mean, how it is going to benefit to the country, to the community at large. That was really an eye opener. मतलब आज मैं जब उस सारे घटनाक्रम को देखता हूँ तो मुझे लग रहा है कि गुरुदेव के बिना ये इतना बड़ा मसला जो हजारों साल से था उसको कभी सुलझा नहीं सकते. और एक घटना ऐसी नहीं हुई कि जहाँ पे कोई हिंसा हुई हो या कोई ऐसी बात हुई हो. बिल्कुल शांति से उस बात को जब उन्होंने जो एक समाधान दिया, ये मुझे लगता है इतिहास में अपने आप में एक मिसाल है. Sometimes he does it with such ease. We don't realize the magnitude of Yes. what he has managed to do. Yes. And then you realize that though he's meeting people, like, you know, must have met thousands of, you know, priests and, you know, also the mullahs from both the sides, like, you know, the Muslim leaders and the Hindu leaders. But उन्होंने जो subtle level पे एक transformation किया, क्योंकि 1000-2000 लोगों को मिलने से वो परिवर्तन नहीं आता, लेकिन एक कम्युनिटी के अंदर भी वो बात आ गई. क्योंकि जब वो मिलके जाते थे धीरे धीरे वो बात फैलने लगी थी. हमने कई बार देखा कि हम फैज़ाबाद में गए थे, लखनऊ में गए या कहीं और सिटीज़ में हम थे, और जब हम एक आम आदमी से भी बात करते थे वो बोलते कि हाँ ठीक है, हमें ये लग रहा है ये बहुत अच्छा एक सुझाव है गुरुदेव का. तो लोगों के अंदर से भी वो एक बात आने लगी, यू नो. सो ही कुड चेंज द माइंडसेट ऑफ द होल कम्युनिटी एट लार्ज. और ये सिर्फ सटल लेवल पे हो सकता है. फिजिकल इंटरेक्शन तो एक लिमिटेड था ही उनका, मतलब जो है वो तो मिल ही रहे थे. It's beyond the intellect. It's beyond the intellect. एक कोई लेसन जो गुरुदेव का दिया गया हो जो आप बार बार रिविजिट करते हैं when you are challenged personally, या कोई नॉलेज पॉइंट जो आपको एक एंकर की तरह निकाल लेता है सिचुएशन से. एक कहना बहुत मुश्किल है. कोविड का समय था और बहुत सारी घटनाएं हो रही थी कोविड को लेकर, तो आप जानते थे मैं भी बहुत सारे काम में उस वक्त था. तो और मुझे बहुत अच्छा समय मिला उस वक्त, करीब 1.5 साल मैं यहाँ पे आश्रम में था गुरुदेव के साथ, और यहीं से सारा हमारा रिलीफ वर्क चल रहा था. जो संस्था को मैं प्रेसिडेंट फॉर द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर ह्यूमन वैल्यूज़ के द्वारा, IHV के द्वारा जो काम हो रहा था. और बहुत सारे चैलेंजेस भी थे, क्योंकि आप यहाँ पे आश्रम में हो और फ़ोन पे आपको ऑल ओवर वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट करना है, और यू नो चीज़ों को जहाँ पे कोविड में लॉकडाउन है एक जगह से दूसरी जगह मूव करनी है. एंड नेचुरली यू आर बिट यू नो ओवरवेल्म विद द होल सिचुएशन एंड स्ट्रेस. तो सब थे, थोड़ा सा एंग्जाइटी भी रहती थी.
और शाम को एक दिन चलते चलते गुरुदेव ने जो बात कही, उन्होंने कहा देखो तुम हर घटना के पीछे कारण देखते हो, यू वांट टू सी द रीजन बिहाइंड एवरी इवेंट्स, या, एंड which is good, like, you know, because on one level it is true that okay, behind every event there is a reason. पर बोलते हैं कि जो घटना तुम्हारे जीवन में हो रही है ना, वो एक बहुत बड़ी घटना का एक भाग है. It's just a part of one big event which is happening right now at this moment. And that big moment is not complete without what is happening in your life, because you are a part of it. But that one big movement has only one cause, one reason, and that is Shiva. कारणों के कारण जो है वो शिव है. जब ये बात समझ लेते हो तो तुम अपनी घटनाओं में और अपने कारण में उलझते नहीं हो. And that was like a big opening for me. I said, wow, it's like, you know, you get so caught up with all the small little happenings which is there in your day-to-day life, and like you try to reason out, oh, it this happened because of this and that, not realizing that it's just a part of big happening. There is one cause. And we're all connected. And it is all connected. दर्शक जी, कुछ लोगों का एक्सपीरियंस होता है पाथ पे कि वो प्रैक्टिस करते हैं, अपना साधना करते हैं, पर उनको एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखने को मिलता. उसके पीछे क्या हो सकता है? देखो, मैं 2 लाइन इसके लिए कहना चाहूँगा कि तिनके समय समुंदर सा इश्क, डूबने का डर, डूबना ही इश्क. आपको अच्छी वाली कॉफ़ी बनानी है तो आप उसमें लुकवार्म पानी नहीं डाल सकते हो. पानी भी गर्म होना चाहिए और तब जाके आपको अच्छी सी कड़क कॉफ़ी मिलती है. तो आपका अप्रोच है, जब तक आप उसमें पूरी तरह से डूबते नहीं हो, आपकी सिंसियरिटी नहीं है, आपकी वो इंटेंसिटी नहीं है, तब तक आप वो स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं. और कई बार हमने देखा है कि एक स्पिरिचुअल शॉपिंग जैसी बात होती है. मतलब आप एक सुपरमार्केट में जा रहे हो और आप रोज़ सब्जियां खरीदते हो, लेकिन बनाते नहीं हो, खाते नहीं हो, तो आप तृप्ति कब मिलेगी आपको? बस आप खरीदते रहते हो. ये समझ रहे हैं? तो एक साधना को लेकर आपकी जो एक कंसिस्टेंसी चाहिए, आपका वन पॉइंटेडनेस उसमें होता है, गुरु के प्रति, साधना के प्रति, ज्ञान के प्रति, वो स्थिति आपको मिलनी है. और मैंने पहले भी कहा था ना, देखो, ज्ञान की तृप्ति तब तक होती है जब तक आप भक्त नहीं बनते. एक बार अंदर भक्ति जग गई और वो जो एक प्रेम की प्यास जगी, अब प्रेम की प्यास कभी मिट नहीं सकती. हाँ, जब ध्यान में आप जाते हो ना, तो आपको थोड़ी सी वो तड़प हमेशा बनी रहती है, और वो तड़प ही है जो आपको ईश्वर से जोड़ती है. और गुरुदेव कहते हैं ना कि मतलब वो एक स्थितियाँ हैं, मतलब जो प्रेम आपको व्यक्ति के लिए है, वही जब ईश्वर के प्रति हो जाता है तो वही भक्ति है. मतलब प्रेम की पराकाष्ठा भक्ति है. अब वहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी है, साधना भी है, वो चलना तो हमें है. तो एक जब सक्षम आत्मज्ञानी गुरुदेव आपके साथ हो, तब बहुत आसान है ये. तो भक्ति कैसे जगाएं? बस यही रास्ता है. क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कभी कि भक्ति भी एक ग्रेस के थ्रू मिलती है, एक भेंट है आपके लिए. कृतज्ञता जितनी बनती है उतनी भक्ति जगती है. कैन वन प्रे फॉर भक्ति? करें, बिल्कुल. कभी आपने एक्सपीरियंस किया डाउट ऑन द पाथ, ऑन द गुरु? कोई मोमेंट ऑफ वीकनेस जहाँ पर आपने एक्सपीरियंस किया और आप उससे कैसे निकले? और गहराई में जाकर उसके थोड़ा उसके बारे में बताएं. तो जब संशय होता है तो उस संशय की गहराई में चले जाओ. आप जिस बात को लेकर संशय है, आप उसकी और गहराई में जाते हो, वो फ्लिप हो जाता है. मतलब ये होता है कि हम हमेशा मे बी मे नॉट बी की सिचुएशन में रहते हैं. तो गुरुदेव कहते हैं ना, कई बार अगर डाउट करना पूरी तरह से करो, बी कंप्लीटली एथिस्ट, तभी वो फ्लिप हो जाता है. डाउट 100%. डाउट 100%.
और दूसरा तरीका है डाउट क्या है, इसलिए लो एनर्जी। आप अपनी शक्ति को बढ़ा दो, प्राण शक्ति जब बढ़ गई तब मैं ना एक स्पीच देता था, डिकोडिंग द मास्टर एंड वे फॉरवर्ड। आई हैव गिवन मेनी टॉक इन यूएसए एंड यूरोप में। तो वे आपको ब्रह्म शक्ति का अनुभव कहाँ हुआ गुरुदेव के साथ रहते हुए? हम ये श्लोक हमेशा बोलते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मेरे मन में हमेशा ये आता था कि भाई ये इसके पीछे कुछ बात तो होनी चाहिए। तो ब्रह्म शक्ति विष्णु शक्ति कहाँ अनुभव में आती है? तो इसके पर मेरा मंथन शुरू हो गया। यू नो, आई ऑलवेज लाइक टू आई कॉल इट अ डिकोडिंग द मास्टर। मतलब अगर एक आत्मज्ञानी गुरु है तो वो आत्मज्ञान की निशानियाँ क्या है? जो हमारा शास्त्र कहता है कि भी आत्मज्ञानी व्यक्ति है, इस तरह से बिहेव करता है, इस तरह से वो जीता है। तो मैंने देखा, देखो ब्रह्म शक्ति, आप जब भी गुरुदेव को मिलते हो या जहाँ पे उनकी कुटीर है वहाँ जाते हो, आपके मन में एकदम खालीपन आ जाता है। एन एक्सपेंशन, इट्स लाइक अ स्पेस। तो वो जो स्पेस होता है, जब आप अपने सारे सवाल भूल जाते हो, वो ब्रह्म शक्ति है, क्रिएटिंग अ स्पेस। कभी आपको किसी ऐसा अनुभव किसी व्यक्ति के साथ होता है कि आप उनके सामने जाते हो एंड लाइक स्पेस्ड आउट एंड यू फील एक्सपेंशन? आपको चाहे जितनी भी आपकी परेशानी है, और वो लाखों की भीड़ में भी ऐसे हो जाता है। मतलब वो व्यक्ति खड़ा होता है, वो सवाल पूछता है, फील एक्सपेंशन। तो ब्रह्म शक्ति और विष्णु शक्ति, तो ये कहते हैं कि भाई विष्णु तो कामदेव के पिता थे। कामदेव से क्या होता है? आकर्षण मिलता है, सारा आकर्षण कामदेव से चलता है, ऑल द अट्रैक्शन हमें दिख रहा है। चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, किसी भी उम्र के हो, किसी भी स्थान पे हो, उनको वो आकर्षण गुरुदेव के लिए होता है। अब वो उनकी गाड़ी जा रही है, गुरुदेव दिख भी नहीं रहे, उसकी गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं। एक दिख कहाँ रहे हैं, क्यों भाग रहे हो? वो भागना है उनको। वो भी नहीं जानते कि क्यों हो रहा है, वो भाग रहे हैं। अच्छा, आकर्षण सेलिब्रिटी से भी होता है। पर आप मुझे बताओ कि कभी किसी सेलिब्रिटी को जाके आपने अपनी इश्यूज या अपने प्रॉब्लम्स उनसे शेयर किए, उनसे मार्गदर्शन लिया? नहीं। गुरुदेव के पास आज करोड़ों लोग आते हैं, उनसे अपनी बहुत निजी सारी समस्याएं हैं वो उनके साथ शेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भरोसा है कि इट विल बी टेकन केयर ऑफ। तो जो पालन शक्ति है विष्णु की, सिर्फ आकर्षण नहीं है, विष्णु के अंदर दोनों बातें हैं ना, आकर्षण भी है और सस्टेनेंस भी है। तब जाते और अपनी बात बताते एंड इट इज टेकन केयर ऑफ। हाँ गुरुदेव, वो हो गया, मन खाली हो जाता है, मन खाली हो गया, वो बात भी हो जाती है। अब कोई ऐसी बात हुई है, हाँ मुझे समाधान मिल गया। अच्छा, और एक बात है कि जहाँ आकर्षण होता है, अब आपके बहुत करीबी किसी रिश्ते को भी देख लो आप, कुछ समय तक रहता है, उसके बाद धीरे धीरे वो कम हो जाता है। तो अंग्रेजी में एक कहावत है कि फेमिलियरिटी ब्रिंग्स कंटेम्प्ट। गुरुदेव के साथ कभी हमने ये अनुभव नहीं किया। आप जितना उनके साथ रहते हो उतना वो आकर्षण बढ़ते जाता है, वो कम नहीं आता है, दिन ब दिन वो बढ़ते जा रहा है। और साथ में वो एक रिस्पेक्ट भी है। सो द लव एंड रिस्पेक्ट रिमेन एज इट इज, इट नेवर डिमिनिशेस, ऑन द कॉन्ट्री इट इंक्रीजेस। This is rare. This doesn't happen. This is a sign of a liberated person. क्योंकि वो आकर्षण जो है वो चेतना का आकर्षण है, वो किसी गुण का नहीं है, किसी रिश्ते का नहीं है, किसी पोजीशन का नहीं है, किसी स्टेटस का नहीं है। ये विष्णु शक्ति और शिव शक्ति, और अपने जीवन को ही देख लो, जो भी परिवर्तन मेरे जीवन में आपके जीवन में आए हैं, हमें समझ में भी नहीं आया ना किस तरह से वो व्यक्ति के अंदर का परिवर्तन हो गया। जो भी हमारी बिन जरूरी तकलीफें थी, समस्या थी, तनाव था, सब खत्म। शिव तो परिवर्तन करते हैं। एंड आवर द मोस्ट लेटेंट इम्प्रेशंस, ये कह सकते हैं कि हमारे पुराने से पूरे संस्कार भी जो है वो भी अब धीरे धीरे क्षीण होते जा रहे हैं। शिव शक्ति, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेटिव पावर।
तो ये अनुभव से समझ में आता है कि हाँ, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, ब्रह्म शक्तियाँ जो है हाँ. वो ये शक्तियाँ हैं. So, as president of IHV, can you share some stories of how the organization came forward and jumped into resolving conflicts and calamities? Yeah, many situations, because IHV is basically for the disaster relief, and I'm associated with the IHV since almost 2000, and when the tsunami happened, and then in that moment I saw that in no time we could mobilize our, the resources and the volunteers and all the local peoples, like immediately they went into action. 3-4-5 दिन लगे. बहुत बड़े ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जो इंटरनेशनली काम करते हैं, और उनके वॉलंटियर्स आए, एंड लाइक दे वर इनटू द 5-star hotels, and they had no idea about the ground reality. I said, oh, we want to do something, but like we don't know the language and we don't know the place, and that we got a lot of stuff, like, but we don't know how to distribute and whom to distribute. So they came to Art of Living, and we helped those organizations. And in those moments, like, of course, जब भी सिचुएशन होती है तो IHV क्या करते हैं, इमीडिएटली तो उनको जो भी रिलीफ मटेरियल है वो हम प्रोवाइड करते हैं, बट IHV वर्क्स फॉर द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, विद अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. तो हमने देखा कि सिचुएशन ऐसी हो गई कि जहाँ पे there are people who are a lot of displaced people, and and there was a lot of trauma in their mind. So Gurudev said immediately start the trauma relief programs, जो Art of Living की expertise है. And then we rehab a lot of people through this trauma relief program, and then we started a school there, Wow. which was much needed. And after so many years, that school is still running. And there was a community development center, and we started with the skill developments, and so it was basically to rehab the whole community, and not just giving them some relief material at that moment of time. तो ये अप्रोच IHV का हमेशा से रहा. आप उनको जो इमीडिएट नीड है वो आप उनको सप्लाई करते हो, आप उनको पूरी करते हो, और उनका ट्रॉमा जो है उसको आप एड्रेस करते हो, एंड देन यू डू समथिंग ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस. तो सेम सिचुएशन हमने कोविड के वक्त भी देखी. कहीं पे हमने हॉस्पिटल्स खोले थे, कहीं हमने वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया, रिलीफ मटेरियल दिया, एंड वी प्रोवाइडेड जॉब्स टू सो मेनी पीपल. उस वक्त एक माइग्रेटिंग लेबर्स का इतना बड़ा इश्यूज था, तो वो अलग जगह, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, एंड देन लाइक दे वर आउट ऑफ जॉब. So we support them with the employments, and we also give them a skill trainings. So number of cases, like in Ukraine, when we had this crisis, and immediately, that moment even the Prime Minister of India called Gurudev and he said, like, we need your support to evacuate the students out of Ukraine. And we have a base in Ukraine. We have a lot of teachers who are working there. So in no time, like, the IHV, and we also have a chapter in IHV in the Ukraine. So they came into action, and then they approached this students. So the government of India took the help of all our volunteers and teachers to evacuate the students. So they helped them to find the way out, so which is the way to reach out to the border. Or border pe humne, there were like 7 countries where we had our the relief camp. Yeah, Poland जहाँ पे हमारा आश्रम है वहाँ पे था, and then we were into Slovenia and Croatia and all these the neighboring countries. We had our people, and they were ready with all the relief material, and they were like local people who could speak the languages. And so initially all the students, they came out, and we helped them to go back to their countries, wherever they were from. But then there were a lot of migrants also coming out of Ukraine. So we helped those people, and they were like destitute women and the children and everybody. We took them to the ashrams, and we give them a trauma relief program. And then Gurudev said कि यहाँ पे we should start some programs for the youth. It is like a long-term rehab center. क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जो बच्चे थे वो ऑर्फन हो गए थे, तो हमने, it was like an kind of an orphanage, but people can come and stay there, and
we give them some livelihood and everything and complete rehabilitation. और फिर उनको जहाँ जाना है, मतलब जो countries में जाना है, like we used to give them a transports and till that person gets settled down. Wow. And they go back with the practice also, right? They go back with the practice. The practice of Sudarshan Kriya. Yes. उसके बारे में थोड़ा बताएं, जैसे आपने बोला trauma relief. And sometimes that thing that you talked about, जो long term एक view होता है trauma को लेकर, कि उस वक्त तो they need basic help, hygiene, food, housing. But एक होता है जब conflict होता है, उसका एक long term effect जो मन पे पड़ता है, वो trauma relief की अहमियत के बारे में बताएं और कैसे सुदर्शन क्रिया ने उसमें हाथ बटाया. देखिए, जब भी ऐसी क्राइसिस होती है सिचुएशन की, मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है, चाहे वो फ्लड हो या अर्थक्वेक हो, वॉर लाइक सिचुएशन होती है, तो उस वक्त लोगों के मन में बहुत एंग्जाइटी होती है. एक डर होता है एंड दे आर uprooted from their routine, from wherever they are, and they don't know what to do with their life. Yeah. So in those situations, the first thing is you have to give them that solace, that comfort, that we are here to take care of you. So in that moment, the trauma relief program, Sudarshan Kriya, help them to get rid of those, the stress or tension or anxiety which they are carrying in their life, and give them a new hope. And we are not just giving them a hope, like we don't just give them a hope, but we also show them a way. Say, okay, fine, we can help you. Maybe you need some skilling, some, आपको एजुकेशन चाहिए आपको वहाँ पे, या जो भी उनकी ज़रूरत होती. कई बार ये हुआ, जैसे कच्छ में ऐसी घटना हुई थी, तो वहाँ पे पूरे गांव के गांव उजड़ गए थे. तो उस वक्त पूरे गांव को वहाँ पे बसाना, घरों को बनाना, वहाँ पे उनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करना, ये भी हमने IHV के द्वारा किया. तो जो घटना हुई और जिसके वजह से जितना नुकसान हुआ, तो हम ये देखते हैं कि नुकसान सिर्फ एक आपके जान माल को ही नहीं होता है, बट आपका खुद का भी जो एक नुकसान हुआ है, और उससे आप उभर के कैसे बाहर आ सकते हो. बट इट्स नॉट जस्ट द मटीरियल लॉस, but you as an individual also, you feel that, oh, I've lost everything in my life. So I think we take care of both the aspects, the individual and also their material aspect. The material and the spiritual. The spiritual. Yeah. Gurudev has put Seva as one of the three main pillars of the path, along with Satsang and Sadhana. Can you talk about your understanding of what Seva truly means? The importance of Seva and what it means? For me, it's just the expression of love. So initially you do Seva because you feel good about it. Yeah. Because when you do something good for others, like, and you see the happiness in their life, so you feel good. You said, okay, हाँ, मैंने उनको help किया. Much later you realize that, okay, that is fine. कई बार हम ये भी कर लेते हैं कि भैया उससे कुछ मेरा नाम हो गया. So ठीक है, आई डोंट से इट्स रॉन्ग, बट जब आप करते जाते हो, और उसमें सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ आता है, आपकी अपनी साधना और नॉलेज से. एंड देन यू रियलाइज दैट हाउ यू आर कनेक्टेड विथ एवरीबडी. जैसे गुरुदेव कहते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम, जब तक आप उसके अनुभव में नहीं आते हो, यू गो एवरीवेयर एंड यू सी देयर इज सो मच ऑफ लव फ्रॉम एवरीबडी, सो मच ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू, या केयर फॉर यू. And you feel that they don't know my language, they are from a different religion, nationality, but still there is a connection. So that experience, that understanding gives you more clarity about the service. That doesn't matter if I'm not from that country or that religion, but as a human, I have a role to play and I can do something for them. So how can one join IAHV? If one wants to do Seva, volunteer with this organization, how can one join? The doors are open. There's no membership. And it's not necessary that you should have done the courses. You can just join and you can do something good about for the society. I mean, there are a lot of projects going on. There are many ongoing projects.
तो जैसे अमेरिका के अंदर ये है कि वॉर वेटरन्स के लिए IHV काम कर रहा है, इन स्कूल के अंदर वो किड्स के लिए काम कर रहा है, जो उनके अंदर बहुत सारा एग्रेशन होता है, तो गन वायलेंस, गन कल्चर जो एक अमेरिका में है, तो उससे लोगों को बाहर लाने के लिए जो IHV काम कर रहा है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं, और उसमें बहुत सारे लोग जुड़े भी है, जो हो सकता है कि आर्ट ऑफ लिविंग से पहले ना हो और उसके बाद फिर कोर्स में इंट्रोड्यूस होते हैं। सो इट्स लाइक एन ओपन ऑर्गेनाइजेशन, एवरीबडी कैन बी अ पार्ट ऑफ इट. And when you represent Art of Living, And along with the Art of Living, we are working in almost 180 countries now. So IHV is a sister concern of Art of Living, and together with all the Art of Living volunteers, we initiate the project. So it's always, together. working hand in hand. Working hand in hand. And how does the international community, when you represent Art of Living and IHV at the UN, let's say, what kind of response do you see from the international community about the work that we've done? There's a lot of respect, and at time for them it's like it's a new approach to the issues, because it's like out of the box, I would Yeah. say. The individual transformation can be a transformation of the society, and how over a period of time, like in 45 years, Gurudev has inspired individuals to address to each and every issues of the society, be it environmental issues, be it peace initiative or trauma relief or drug abuse, or you name it, and we have reached out to those people and we have helped those people. So for them, this whole approach is very overwhelming. I said, wow, I mean, you can really change the people, you can change their mindsets, and they can do so much in this life. So today Art of Living is one of the biggest voluntary organizations in the world, and we have reached out to so many people in just 45 years. And we have a special consultative status with the Special ECOSOC. consultative status. We are a member of the Economic and Social Council of United Nations. So, What's your dream for Art of Living for the next, let's say, 10 to 15 years? Where do you feel we need to go now from here? गुरुदेव ने कई बार कहा है कि ये जो ज्ञान है, ये जो मूवमेंट है, so Art of Living for me is like a movement, yeah, and this will remain for thousands of years. So maybe another whatever number of years I'm going to work, I have a dream that it should get institutionalized. Education system में, corporates में, government sectors में, ये एक हमारा जो एक वैदिक knowledge है, this wisdom should be there in every field of our life. और उसको लेकर गुरुदेव ने कहीं, now we have this World Forum for Ethics in Business, and ethics in sports, and ethics in politics अभी एक हो रहा है. अच्छा. So values की जहाँ पे बात करते हैं, तो when the society is value driven, then it is like happy society for everybody, a just society for everybody. It's for the welfare and well-being of everyone, and this cannot happen without a spiritual wisdom, without uplifting the humanity. And I think this is what Gurudev is doing. So I would like to see that in my lifetime, at least, I can bring these things to as many institutions around the world. Well, I wish. And then it will sustain. Yeah. Because we see that एक बार जब एक पॉलिसी लेवल की बात बन जाती है, हाँ, तो वो फिर आगे चलते रहती है. Of course, there is always, innovations and transformations, but it should be like a common narratives or norms of the society. आज जैसे मोबाइल को लेकर या टेक्नोलॉजी को लेकर हम किस तरह से बिहेव करते हैं, वैसे ही ह्यूमैनिटी को लेकर या ऐसे वैल्यूज को लेकर हो. I wish that your vision for Art of Living comes true in your lifetime, and that we don't have to wait for too long for it to be institutionalized, like you said. I think it's an ongoing process. Yes. It's an ongoing process. Yeah.
एंड एवरी टाइम देयर इज अ सिचुएशन, अभी जैसे आज एक घटना हो रही है हमारे सामने, एक वॉर लाइक सिचुएशन हो रही है, एंड वी होप कि ये और एस्केलेट ना हो। बट सबको लग रहा है, कोविड के वक्त सबको ये लग रहा था कि लाइफ इज़ नॉट जस्ट व्हाट आई एम डूइंग, यू नो, बिकॉज आई हैव सो मच टाइम। एंड जब वो समय होता है तब आप सोचते हो अपने बारे में। गुरुदेव हमेशा यही कहते हैं कि थोड़ा सा 5 मिनट तो निकाल के बैठो, सोचो कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जाना है आपको, या आप क्या हो। तो हमारी एक रूटीन लाइफ में हम इतने भागते रहते हैं कि वो 5 मिनट भी हमें नहीं मिलता है कि अपने बारे में सोचने के लिए। तो वो जब एक एक ब्रेक लगती है, अब वो ब्रेक या आप खुद लगा लो या प्रकृति के द्वारा लगे, तब वो एक शिफ्ट आना शुरू होता है। और ये सोचना कि हम क्या कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, नॉट व्हाट अबाउट मी जो गुरुदेव कहते हैं, बट व्हाट कैन आई डू फॉर सोसाइटी इज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। आई वुड से बोथ गोज टुगेदर, बिकॉज जब तक वो तनाव होता है अपने बारे में सोचते रहोगे। जब मेरा तनाव हट गया तब मुझे वो लगता है कि यार अब मैं तो खुश हूँ, चलो मैं क्या कुछ कर सकता हूँ दूसरों के लिए। थैंक यू सो मच दर्शक जी, आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ बिताया और जो आपने इतना टाइम स्पेंड किया है गुरुदेव के साथ, उसमें से जो स्पिरिचुअल इंसाइट्स आपको मिली आपने हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच।